I'll start your recording also. Okay. So how many ways we have of iterating through a hash map? So let's take a hash map demo 3. I'm audible, right? So let me make a simple hash map. So one way of iteration was this, using entry. We keep it as a third option. Okay. So what we can do is we can get all the keys. I want to display key value pairs. So if I do a sys out and I display the employees, do a control S and right click, and if I run the code on the console, it is showing me the key value pairs like this. Okay, this is one way. Display the entire hash map. Okay, now if I want to iterate to the hash map individually, so what I can do is, one way of doing it, take an enhanced for loop, take one key. Key will be of what type? Key will be of what type over here? String type, right? And from these employees, I can fetch all the keys using the function called key set. So from this, now which key is in the first iteration? Alice. So if I sys out, key will give me Alice. If I want to sys out the value also, what will I do? In hash map, if you get the key, it will give you the value, right? Hash map dot get me the key and I will give you the value. So what will be the output of this code? Alice, comma 800, Ben, comma 900, like this. Alice, comma. So one simple way is, you fetch all the keys in a key set, and one key from that set will come in the key, and then you can display key and employee.get key. One way was this. Second way is, what we can do is, we can take a iterator. No iterator? We are taken in priority queue to check whether it has element or not. Remember? In Juice World, we are taken iterator, and it has a function to check whether there is a next element or not. So what we can do is, we can take a iterator to store the key one by one. So what type of value will the iterator store? String. Okay, and we'll take all the keys from where? Import the iterator from util. From where will I take the keys? Okay, so iterator. So we'll take the employees dot key set, convert it into an iterator of string, and store all the keys where? Okay, so this iterator has a function, has next, to check whether next data is there or not. So while keys dot has next means, does it have the next key? So what this does is, it fetches all the keys. Which are they? Alice, Ben, Chris, David, and store it in the iterator by what name? By default, keys is pointing at the before first. Where does the keys point by default? By default, where does the iterator point? Before first. It points over here, before first. So it is checking now.
Has next. Is there next value? Means is there key present by Alice? All the keys are put in this, no? So if it has next means true or false? True. And then if you want the key, you can say keys dot next. Will give you the value. So if you want to read the keys, you can say from here keys give me the next value. That is the function. And if you want the value of that key, you can say get me the keys of next. See, I'll copy this and paste it over here in the paint screen to show what's happening. How you can iterate through a this is the code I've written, right? So what is my hash set? This is my hash set. So when I write this code, what does it do? It fetches all the keys. Means what? Yes, fetches all the keys and puts it into a iterator keys, right? And this keys by default points where keys by default points where before first. So where is the keys pointing? It is pointing over here. Now I run a loop. Keys dot has next. Has next true or false? Come inside. From that give me the next values. What is the next value? यहाँ से आया ना वो, यहाँ था ना वो. तो हैज नेक्स्ट है क्या? है. तो मुझे वो नेक्स्ट वैल्यू दे दो. तो क्या दे देगा? एलिस. तो कीज डॉट नेक्स्ट में क्या आ गया? एलिस आ गया. तो वो की दिखा देगा. और फिर उसका मुझे चाहिए वैल्यू 800. तो मैं करता हूँ एम्प्लॉय डॉट गेट कीज डॉट नेक्स्ट. गेट वैल्यू ऑफ एलिस क्या आएगा? 800. तो ये भी एक वे है इटरेट करने का. ठीक है. यहाँ पर हमने कॉमा से सेपरेट किया था. यहाँ पर हम स्टार से सेपरेट करेंगे ताकि दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए. सेव और रन. क्या बता रहा है ये? hash map cannot be cast to a iterator. Class cast exception. Hash map key set cannot be cast to a iterator. तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा इन्यूमरेशन. लेना पड़ेगा इन्यूमरेशन. शायद इन्यूमरेशन से हो जाएगा. enumeration of string keys ये हो गया. और इसके अंदर फिर एक अलग से फंक्शन है हैज मोर एलिमेंट्स या हैज नेक्स्ट. कन्वर्ट. ओके. इसके अंदर है हैज मोर एलिमेंट्स. हैज मोर एलिमेंट्स ट्रू है. उसको फेच करने का रहेगा तो हैज नेक्स्ट एलिमेंट. ऐसा कर सकते हैं. दिस शुड वर्क. इन्यूमरेशन यूज कर. cannot be cast to Java enumeration. Now why is it showing? Enumeration keys ले लिया. has more elements. This is sound. Change type of keys to set of keys. तो set of keys करेंगे तो फिर वो set पे तो
इन्यूमरेशन ऑफ स्ट्रिंग, यस। और इन्यूमरेशन एक एक रिकॉर्ड को स्टोर करते जाएगा। यहाँ पर हैज एलिमेंट, हैज नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसा है, सिंपल है। Let's check on ChatGPT what is the problem with this type. We can see. So you take a key set collections dot enumeration. क्या है वो? collections dot enumeration है। अब हो जाएगा। collections में import कर लो। आ गया स्टार से, दो ही आए पर। हैज नेक्स्ट दो बार जा रहा है ना, पर वो इन्यूमरेशन में नेक्स्ट है ही नहीं ना। तो ऐसा करना पड़ेगा अपने को फिर। हाँ, दो वो स्किप होके आ रहा है ना, उसको ऐसा करना पड़ेगा अपने को। See, I take all the keys and stored in an enumeration। enumeration मतलब एक array जैसा होता है। तो array का नाम क्या हो गया? keys। उसमें जब तक एलिमेंट्स रहेंगे, बाय डिफॉल्ट इनम में भी कहा जाता है बिफोर फर्स्ट। कहा जाता है बाय डिफॉल्ट वो बिफोर फर्स्ट। तो अभी ये कहाँ आ गया? बिफोर फर्स्ट आ गया। हैज मोर एलिमेंट्स, ट्रू और फॉल्स। कीज डॉट नेक्स्ट एलिमेंट ले लो, तो क्या है? पहले किस में आ गया? और वो की दिखा दिया, स्टार का दिखा दिया, गेट ऑफ की। गेट ऑफ एलिस कितना है? 800। फिर मोर एलिमेंट्स है, यहाँ आ गया था ना वो, मोर एलिमेंट्स है, यस। तो नेक्स्ट क्या है? वो ले लिया, डाल दिया की में, उसका वैल्यू दिखा दिया। मोर एलिमेंट्स है, क्रिस पे आ गया, मोर एलिमेंट्स है, डेविड पे मोर एलिमेंट्स है, लूप टूट जाएगा अपने आप। आ गए चारों स्टार के साथ। ओके, ये भी एक ऑप्शन है हैश में आपको इटरेट करने का, कीज सारे अलग करके एक एक की को लेके उसके वैल्यूज को फेच करते जाओ। और जो थर्ड मैंने कल बताया था एंट्री वाला, वो क्या था? एक फॉर लूप ले लो और पूरे एक रिकॉर्ड को एंट्री बोलते हैं हैश मैप में। हैश मैप में एक पूरे रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? तो ये कितनी एंट्रीज हो गई? कितनी एंट्रीज हो गई ये एक एंट्री है। तो एंट्री का की वैल्यू क्या है? एंट्री का की वैल्यू क्या है? एंट्री का की स्ट्रिंग है और वैल्यू डबल है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री ले लेंगे जिसका की क्या हो? स्ट्रिंग हो और वैल्यू क्या हो? डबल। उसको मैं बोल दूंगा, लेट से एक रो बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा उसको मैं? तो कहाँ से लाएंगे पकड़ के उसको पूरा? एम्प्लॉइज डॉट एंट्री सेट्स। कंट्रोल शिफ्ट ओ इंपोर्ट कर लो इसको मैप के एंट्री से। अब एक एक रो किस में आ गया? रो में आ गया। अब उसको डिस्प्ले करना हो तो उस रो का क्या दिखा दो? रो का गेट की, और अभी यहाँ डॉलर दे रहा हूँ, उस रो का रो डॉट गेट वैल्यू। save and run। so by all the three ways we can iterate it। कॉमा से भी, स्टार से भी और डॉलर से भी। कॉमा से कैसे किया? सारे के सारे कीज को फेच किया और इटरेट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर।
और एन्यूमरेशन से भी कर सकते हैं. Collections dot enumeration get all the keys stored in this keys. By default it points to the before first. Keep on iterating. Has more elements, get the next element. Has more element, get the next element. Has more element, get the next element. Loop will break when there is be no next element. And once I get the key, I can always get the value by saying get the key. Or I can use the fastest way is using the entry, because directly you have got the key and value over here. Yes, ये possible है. ओके, लैम्बडा भी कर सकते, जो जावा 8 पढ़ लेंगे उसके बाद लैम्बडा एक्सप्लेन करेंगे. लैम्बडा एक्सप्रेशन भी आता है. देखो इधर, तो ये देखो, ये यूजिंग एनहांस फॉर लूप, फर्स्ट दिया अपन कॉमा से, यूजिंग इटरेटर. देखो ये इटरेटर होता था ये. ओके, की सेट को इटरेटर में कन्वर्ट करने का. की सेट को हम जो इटरेटर ट्राई करते ना, इटरेटर का हम लोग क्या ट्राई करते हैं इटरेटर के अंदर, we were trying like this, right? Iterator of string, and will give me keys and what, employees dot key set dot iterator. This is what we were missing. Control Shift O. And now this is same like your enumeration. ये क्या कर दिया अपन ने? ओके, इसमें क्या है, keys dot as next है, तो keys dot next लेना. तो यहाँ पर कीज 1 करना पड़ेगा, ये इशू आ रहा. इसको दे दो, कुछ और वेरिएबल दे दो, पाउंड दे दो, कंट्रोल एस, तो ऐसा भी कर सकते हैं. पाउंड से भी आ रहा. 1 2 3 ही आया, पर कितना आया, 4 आया ना. ठीक है, तो यूजिंग इटरेटर भी है, यूजिंग एन्यूमरेशन भी है, यूजिंग एंट्री भी है, और फिर लास्ट में क्या है, यूजिंग योर लैम्बडा एक्सप्रेशन. फॉर ईच लगा के एक एक की में आती जाएगी और उसका फिर वैल्यू निकालती जाएगी. map dot key set dot for each, and one element will come in this key, and we'll use the arrow function. It's quite similar to your JavaScript. तो क्या हो रहा है, जो हमारा हैश मैप है, हैश मैप डॉट, क्या नाम है हैश मैप का, एम्प्लॉयज है क्या, ठीक है. एम्प्लॉयज का क्या निकाले, की सेट निकाले, उस पर लगा दिए फॉर ईच फंक्शन. क्या लगा दिए, फॉर ईच लगा दिए, फंक्शन है वो. अब उसके अंदर जाना पड़ता है लैम्बडा एक्सप्रेशन के अंदर, तो फॉर ईच के अंदर ऐसा आना पड़ता है. यहाँ पर एक एक एलिमेंट किस में आएगा, अपना आता ना एनहांस फॉर लूप में, एक एक एलिमेंट किस में आ रहा है, वैसे इसका भी एक एक एलिमेंट किस में आ रहा है, और उस की का करना क्या है फिर वो यहाँ लिखना पड़ता है. क्या करना है उस की का. अब तेरा की किस में आ गया, अब अगर तू यहाँ पर सिस आउट कर देता है सिर्फ की, तो आउटपुट क्या आएगा, सारे कीज आ जाएंगे लास्ट में. ठीक है, तो अपन एक सिस आउट कर देते हैं. ओके, तो ये लाइन के नीचे सब की आ जाएंगे. आगे अब ये करना क्या है उस की का, हाँ, तो अगर फिर उसका वैल्यू दिखाना है तेरे को, तो तू ऐसा प्रिंट आउट कर दो. एक एक की में आ गया ना, तो कुछ और लगा दे, एंड लगा, 2 बार एंड लगा दे.
समझ रहे हैं? वो है लैम्बडा एक्सप्रेशन। की सेट को फॉर ईच लगा के एक एक की इसमें आ गया तो कर लो। कितने बेस हो गए हमारे? 5 वे हो गए। 5 वे कौन से हो गए? यूजिंग एनहेंस फॉर लूप, यूजिंग फर्स्ट वे क्या था? टू इटरेट थ्रू अ हैश सेट एनहेंस फॉर लूप, दिस वाज योर वन। सेकंड वाज यूजिंग iterator, using what? Iterator. Third was using enumeration. Fourth was using, follow, entry. And fifth was using lambda expression. Making sense? Okay. Now if I give you a hash set का, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अभी बहुत काम का है ये, बहुत ही काम का है कि एक एरे में से, सिंपल एग्जांपल है, एक एरे में से मुझे बताओ कितने नंबर्स ऑड है और कितने नंबर्स इवन है। एक एरे लेना है आपको, मैं हार्ड कोडेड ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स ऑड है, कितने नंबर्स इवन है? बोलो भाई। हाँ, 2 नंबर्स इवन है और 3 नंबर्स ऑड है। सो ये मैं कर सकता हूँ बगैर हैश मैप के, अभी ट्रेडिशनल वे से। कैसे करूँगा मैं? ऑड काउंट वेरिएबल ले लूँगा, इवन काउंट वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है? दोनों इनिशियलाइज क्या हो गए? 0 हो गए। फिर इस एरे को इटरेट किया, एन में क्या आ गया? एन में क्या आ गया फर्स्ट इटरेशन में? हाँ, 1 आ गया। तो अगर चेक करूंगा एन को कि वो इवन है क्या नहीं, अगर इवन है तो क्या क्या कर दूंगा मैं? इवन काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, और एल्स या तो मैं ऑड काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। सही है? और फिर सिस आउट आके कर देंगे, बाहर आके इवन काउंट इज इवन सी, एंड सिस आउट कर देंगे ऑड काउंट इज ऑड्स। तो आंसर क्या आएगा? इवन काउंट इज 2, ऑड काउंट इज 3। करेक्ट? ये आ गया। ओके, तो ये यूज केस के लिए सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आंसर हम ऐसे कर सकते थे। ओके, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक सेंटेंस लो, एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा सेंटेंस, और उसमें, या एक सेंटेंस ले लो, माय, और स्मॉल कर लो, माय नेम इज एलिस, एलिस इज अ गुड नेम इज। अब बताओ कौन सा वर्ड कितने बार आया है? तो इसका आउटपुट क्या था हमारे जहन में? इसका आउटपुट यह था कि ऑड काउंट, शुरू में आपने बोल दिया था मुझे ऑड काउंट 3 है और इवन काउंट 2 है, राइट? तो आपने शुरू में मुझे आंसर दे दिया था, और वो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया हमारे आउटपुट से। अब यहाँ पर आप मुझे आंसर दो, क्या रहेगा? माई कितने बार आया है? नेम इज
एलिस अ गुड नेम हो गया। ये आपका आंसर आना चाहिए। तो अभी आप क्या करेंगे, माई काउंट नेम काउंट इज काउंट एलिस काउंट ए काउंट गुड बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। यूजर कैन चेंज दिस स्ट्रिंग एनी टाइम नो। तो यहाँ पर तो आपको मालूम था कि भाई दो वेरिएबल बनाने हैं, काउंट ऑड काउंट और इवेंट काउंट। तो दो कैटेगरी के नंबर्स पूछे गए थे। यहाँ पर तो ये स्ट्रिंग तो डायनेमिक है। आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बना कर दिया यूजर को फ्रंट एंड में, बोला कि एंटर अ स्ट्रिंग, वो क्या एंटर करेगा मालूम है क्या? तो हाउ विल यू डिक्लेयर द हार्ड कोडेड वेरिएबल्स? तो यहाँ पर आता है हैश मैप काम में। ठीक है, तो कोई आपको पहले से बनाने की जरूरत नहीं है वेरिएबल्स को। ठीक है, पहले इस स्ट्रिंग को, इंटरव्यू क्वेश्चन है ना ये, वेरी गुड। तो पहले इस स्ट्रिंग को क्या कर लो, इस स्ट्रिंग को पहले क्या कर लो, स्प्लिट कर लो। तो जो स्प्लिट करेंगे उसको करेंगे एरे ऑफ स्ट्रिंग में। ओके, तो स्ट्रिंग का एरे वर्ड्स हो जाएगा। और किस पे स्ट्रिंग स्प्लिट कर लेंगे उसको, कौन से कैरेक्टर पे? स्पेस पे। ठीक है, तो मैं ऊपर का कमेंट कर रहा हूँ ताकि हमारा आउटपुट से उसी को फोकस करें। ये अब यहाँ लिख रहे थे, गलत लिख रहे क्या? ये लिखना चाहिए था अपने को मेन के अंदर, है ना। चलो ओके, अभी अगर मैं वर्ड्स डिस्प्ले करूँ तो क्या हो गया, हाउ विल डिस्प्ले वर्ड्स? तो ये आपके वर्ड्स हो गए। माई नेम इज एलिस, एलिस इज अ, जो सेंटेंस था वो किसमें हो गया? ये आपका सेंटेंस था ना। सेंटेंस देखो कैसे दिखता है और एरे के देखो कैसे दिखता है। ये आपका स्ट्रिंग ऐसे दिखता है ना, और ये एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट लग गए। तो जीरो इंडेक्स पे कौन है? वन इंडेक्स पे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये अपना कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इस वर्ड्स को क्या करो, इटरेट करो, और एक एक वर्ड में लेंगे हम लोग। तो अभी वर्ड्स में क्या आएगा पहले इटरेशन में? माय, एक हैश मैप बना लेंगे वर्ड का काउंट रखने के लिए। तो की होगा वर्ड और वैल्यू होगा उसका काउंट। तो कैसे बनेगा, मैप ऑफ, अब इस हैश मैप में कोई की है क्या अभी? कोई की है इस हैश मैप में? तो की है क्या नहीं चेक करने के लिए कंटेन्स की फंक्शन है, क्या है? कंटेन्स की एक फंक्शन जो चेक करता है कि हैश मैप में वो की है क्या नहीं है। तो कोई की है माय नाम की इस हैश मैप में अभी? यस और नो? सो इफ माय काउंटर ना नाम क्या हैश मैप का, कंटेन्स द की बाय नाउ, माय, माय किसके अंदर है? वर्ड में। ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू है, वाओ। फॉल्स है ना, जस्ट शुरू हुआ हैश मैप, तो कुछ भी नहीं, खाली हैश मैप। तो कंटेन्स की ट्रू है क्या फॉल्स है? फॉल्स है। तो क्या इसमें आएगा कि एल्स में जाएगा? और मैं क्या करूंगा फिर, मेरे हैश मैप में एक एंट्री ऐड कर दूंगा उस की। और कितने बार आ गई वो की अब तक? एक बार आ गई। की क्या है? की क्या है? तो अभी वो एक हैश मैप में एंट्री हो गई, क्या नाम से एंट्री हो गई? वर्ड, वर्ड क्या है? माय, और वैल्यू कितना है उसका? नेक्स्ट आया नेम, नेम किस में आ गया? वर्ड में। डज द हैश मैप कंटेन अ की वर्ड बाय कंटेन द की नेम? यस और नो? तो क्या होगा एल्स, इफ क्या एल्स में? वो क्या करेगा, एक और डाल देगा एंट्री नेम की, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर इज आया, डज इट हैव अ की बाय इज? तो इफ में क्या एल्स में, और एंट्री कर देगा वन। फिर एलिस आया, डज इट हैव अ की बाय एलिस? यस और नो?
यस और नो, और वैल्यू 1 हो गया। ओके, फिफ्थ इटरेशन में वापस एलिस आया, डज इट कंटिन्यू की बाय एलिस, यू गोइंग ट्रू और फॉल्स, ट्रू आएगा। अब इसका वैल्यू क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। तो हैश मैप में जब मैं वैल्यू अगर की को रिपीट करूं तो क्या होता है, वैल्यू ओवरराइड होता है। क्या होता है, हैश मैप में अगर आप की को रिपीट कर दो, अगर आप यहां पर लिखो एलिस और 1500, तो क्या होगा, नई एंट्री ऐड होगी, क्या ये जो एलिस 900 वाली 800 वाली है 1500 बन जाएगी। हाँ, व्हेन यू रिपीट द की इट ओवरराइड्स द वैल्यू, ठीक है ना। सो अभी इसमें आ गया। अब मैं वापस पुट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वापस मैं पुट कर रहा हूं कौन सी की को, यानी कौन सी की को, नए वैल्यू के साथ। तो नया वैल्यू क्या होगा, इसका +1, तो ये कैसे रीड करेंगे, ये 1 कैसे रीड करेंगे, ये नया वैल्यू होगा ना कॉमा के बाद, नया वैल्यू कैसे रीड करेंगे हम लोग, काउंटर से गेट मी द की बाय व्हाट वर्ड, क्या देगा मुझे वो 1 देगा, उसको +1 कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, इसका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और सेट एलिस द वैल्यू एज 2, समझा। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या आया, इज आया, इज की है क्या अंदर आओ, वापस एक की वापस इज ऐड करो। तो जब आप की वापस ऐड करते हो तो वो नया वैल्यू से ऐसे ऐड कर देगा। तो काउंटर डॉट गेट इज क्या गेट करेगा, 1, 1 + 1 तो और इसको सेट कर देगा 2 समझ में आ रहा है। ऐसे ही है क्या, है, तो क्या हो गया 1, फिर गुड है, तो 1 इज है, फेच द ओल्ड वैल्यू, ठीक है, सेव करते हैं और रन करते हैं। ओके, आपने काउंटर डिस्प्ले नहीं किया ना, आपने काउंटर डिस्प्ले नहीं किया ना। हाँ, एक मिनट, क्या बोल रहा है, लिमिट 2 है क्या, ठीक है, डिस्प्ले काउंटर और वो डिस्प्ले कर देगा A1 है, नेम 2 है, एलिस 2 है। ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता ना वो, तो रैंडमली कैसे भी ले लेगा। समझ में आ गया कैसे, तो ये इसमें क्या वर्ड देंगे वी डोंट नो, तो आई कैन नॉट यूज दिस स्टाइल ओवर देयर, सो आई विल नाउ वॉट एवर आई विल चेंज ओवर हियर विल एड इन द हैश मैप, करेक्ट। ये समझ में आ गया कैसे किया ये, गॉट इट, प्रैक्टिस। सो ये हमने एल्स क्यों लिखा है अगर की नहीं है तो सिर्फ 1 वैल्यू ऐड करने के लिए ना। तो इसका भी एक फास्टर वे है कि आप ये जो फॉर लूप हमने लिखा है इसको और फास्ट कर सकते हैं। ये तो तुम समझ में आ गया ना, ये सब मैं साइड में कर रहा हूँ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली क्या करेंगे, देखो ये सब एक ही लाइन में हो जाएगा, एक ही लाइन में ये निकाल दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, वर्ड काउंटर डॉट गेट करके एक फंक्शन है और एक फंक्शन है गेट और डिफॉल्ट। तो अगर वो वर्ड मिल जाए तो वर्ड ला दो, नहीं मिले तो 1 ला दो। तो ये की है क्या अभी हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन किया हमने, ठीक है। लेट से अपन ये वाला कोर्स को कमेंट कर देते हैं, ये वाला फॉर लूप मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, इन 1 लाइन द कोड इज गेटिंग कंप्लीट। फर्स्ट वर्ड में क्या आया, माय आया, काउंटर में है क्या गेट, माय है क्या, क्या ला देगा वो 1 ला देगा, वो सेट कर देगा अगर, ठीक है, करेक्ट।
So in one single line this will be, so it will put the word, क्या डालेगा की उसका, माय रहेगा, काउंटर में चेक करेगा, वो की अगर है तो वर्ड ला देगा, नहीं है तो क्या कर देगा, सिर्फ 1 कर देगा। तो ये और भी फास्ट हो जाएगा अभी। नहीं तो बताता हूँ। तो ये कहाँ से कर रहा है, सिस आउट, और क्या कर देते हैं हम लोग, काउंटर कर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 0 करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, 0 करना। Okay, A is 1, name is 2, Alice is 2. So if that key is there, set that key with value what, 0, और क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये गेट और डिफॉल्ट ये काम करता है और फास्ट हो जाता है, राइट। अगर है तो वो की का वैल्यू ला दो, नहीं है तो क्या ला दो, 0, और उसमें हम लोग +1 कर ही रहे, ठीक है। तो अब कैरेक्टर्स पे अगर मुझे करना हो, इसमें करना हो, समझो ये थोड़ा सा स्लिप हो सकता है, ये थोड़ा सा ये स्लिप हो सकता है। If I take a string, सेंट कुछ भी ले लो, नेम ले लो, और मैंने लिख दिया महेंद्र सिंह धोनी, इस स्ट्रिंग में सबसे पहला रिपीटेड कैरेक्टर कौन सा है, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर, एम रिपीट हो रहा है क्या, ए रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर क्या है, वो दिखाना। अगर मेरी स्ट्रिंग होती विराट कोहली, तो कौन सा कैरेक्टर फर्स्ट रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, ठीक है। रोहित शर्मा में कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा हो रहा है, एच, आर, ओके, आर ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो अभी वो वाला टास्क करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले हर कैरेक्टर का अकरेंस काउंट निकाल लो। तो क्या डालेंगे हम लोग हैश मैप पे, एम कितने बार आया है, ए कितने बार आया है, एच कितने बार आया है ना। तो मैप ऑफ, बोलो, कैरेक्टर एंड इंटीजर, ओके, आई कॉल इट एज काउंट, इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, सही है। फॉर लूप लगा लो, एक एक कैरेक्टर सी को क्या कर लो, नेम को कन्वर्ट कर लो किसमें, टू कैरेक्टर एरे में। तो अब सी के अंदर क्या आ गया, एम आ गया, बस सेम वही वाला लॉजिक, काउंटर डॉट पुट कर दो इसको, की वैल्यू क्या है सी, और चेक कर लो इसका अगर पहले से कोई वैल्यू है क्या, तो काउंटर डॉट गेट, और बाय डिफॉल्ट सी का डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दो, 0 और +1 का। तो ये मुझे क्या दे देगा, कौन सा कैरेक्टर कितने बार आया है, करेक्ट। इफ आई डिस्प्ले दिस, if I display this, will give me the ये क्या है, वाइट स्पेस आ गया है क्या, ठीक है। इफ
कैरेक्टर डॉट क्या है, इज वाइट स्पेस सी नॉट लगा दो, क्या कर दो उसको, वाइट स्पेस को नहीं गिरना है अपने को, ठीक है। तो A2 है, R1 है, S1 है, D1 है, ब्ला ब्ला। तो ये ऑर्डर में क्या रैंडम ऑर्डर में आ रहा है, रैंडम ऑर्डर में आ रहा है। ओके, जहां पर 2 बार है वो रिपीट हुआ है, तो A रिपीट हुआ है, D रिपीट हुआ है, H रिपीट हुआ है, और H 3 बार आया है क्या, और N रिपीट हुआ है, करेक्ट। तो अब क्या करना है, वापस यही वाला फॉर लूप लगा दो। मैं किस पे लगा रहा हूँ फॉर लूप, ओरिजिनल एरे पे। तो सी में क्या है, M है, इसका काउंट 1 से ज्यादा है क्या, तो इफ काउंटर डॉट गेट ऑफ M, व्हाट विल इट गिव मी, C का काउंट क्या है, M का काउंट क्या है, मुझे चाहिए फर्स्ट, तो जो मोर देन 1 आया है, ये मोर देन 1 आया है क्या, M नहीं, किसका, C, मोर देन 1 है क्या, तो फिर मैं कर दूंगा, इस आउट कर दूंगा, C को ब्रेक कर दूंगा। ओके, सो लेट्स कम, फर्स्ट इटरेशन में C में क्या है, M का काउंट कितना है, इज इट ग्रेटर देन 1, छोड़ दो। फिर क्या आया, A काउंट क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो वो दिखा दो, A को और ब्रेक कर दो, खलास। A वो कैरेक्टर है जो फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस है, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग, क्या क्या था इसका क्वेश्चन, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। अब तुम लोग करो फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर जो रिपीट नहीं हुआ है, M रिपीट हुआ है क्या, तो M इज द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, कैसे करेंगे, सेम लगाएंगे, जिसका इक्वल इक्वल टू 1 रहेगा, क्या कर देंगे, जिसका इक्वल टू 1 रहेगा, सेम है, इसका क्या रहेगा, इक्वल टू, वो क्या है, फर्स्ट क्या, नॉन रिपीटेड कैरेक्टर। तो इसमें कौन सा फर्स्ट कैरेक्टर जो रिपीट नहीं हुआ है, एम का आंसर आना चाहिए, एम आ गया। लेट्स चेंज द स्ट्रिंग एंड चेक, ए बी बी ए सी सी डी ए बी बी ई एफ एफ जी एच, कौन सा कैरेक्टर जो फर्स्ट रिपीट, ए रिपीट हुआ है, बी रिपीट हुआ है, सी रिपीट हुआ है, डी रिपीट हुआ है, हाँ, तो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है, हाँ, डी, सही है। और यही स्ट्रिंग अगर मैं ले लूं इधर, तो फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है, बोलो, ए, कोई शक, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालो हैश मैप के अंदर, समझ में आ गया, गेट और डिफॉल्ट, तो कंटेंट्स का बार बार फंक्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।